Good morning, students. Hello, everyone. How are you? I think you all would be happy and safe in your homes with your parents during this pandemic. As we all know, students, the whole world is in its toes battling against this coronavirus, and we all are forced to remain in our homes just to be safe from this coronavirus. And you are also scooped in your homes. You are not allowed to go outside, to go to your schools. So we had many experiences during this pandemic, and me too, as you all have many experiences. Achha, I would like to ask you one thing before starting my topic today. जैसे आपको पता है अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स हमने मनाए हैं, एंड इन इंडिया वी आर habitual of doing our celebration in a great manner, but this time because of this pandemic we were not able to celebrate in that way. तो जैसे अभी रक्षाबंधन था, जन्माष्टमी था, बकरा ईद था, there were so many festivals. How did you feel? How did you, students, how did you feel and how did you celebrate these festivals? I know you are saying, no ma'am, this time we could not enjoy it so much because we are not allowed to go outside. Our friends, our relatives were not allowed to come to our homes. So I know this thing, and it has been very painful for everyone. So today I am going to teach you the lesson of 8th class, the best Christmas present in the world. The author of this chapter is Michael Morpurgo. Students, the author of this story is a very famous English author, and he is well known for the students' novels, just like War Horse, the famous one novel, whatever he has written, and it is an English novelist and playwright. So I hope you all would have your textbooks with you, and if you don't have, so as I am going to brief some things before starting this lesson, so I hope you all would have your textbooks with you by your side. Students, the best Christmas present in the world. आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये लॉकडाउन कहीं ना कहीं, बिकॉज यू आर वेरी यंग, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो यू वुड नॉट बी एबल टू आंसर मी, लेकिन आपके घर में बड़े हैं और आपके एल्डर्स जो हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि इस लॉकडाउन में उनको क्या कुछ सिमिलरिटीज़ लगी जो किसी चीज़ से वो को रिलेट कर सकें, तो ज़रूर उनका जवाब होगा, जिस प्रकार से कभी लड़ाई छिड़ती है और कर्फ्यू लग जाता है, कर्फ्यू लगता है तो कर्फ्यू में भी ऐसा ही होता है कि यू आर फोर्स टू स्टे इन योर होम्स, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड. तो इस लॉकडाउन में भी कुछ ऐसा ही हुआ. तो जब वार होती है, आपको, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मालूम होगा व्हाट इज़ वॉर. जब दो कंट्रीज आपस में लड़ती हैं, दैट इज़ वॉर. और अगर आपको पूछूं कि आपको कोई वॉर रिमेंबर है, तो शायद आपको जवाब, बहुत से बच्चे जवाब दे पाएँ और बहुत से कहें कि ना भी याद. जस्ट जो लास्ट हमारी वॉर हुई है पाकिस्तान के साथ, कारगिल युद्ध, वो आपको ज़रूर याद होगा. तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वॉर. War is not good because war always brings sadness, pain, humiliation all around the world, but sometimes it becomes necessity. So in this topic, it is as you have seen it here, best Christmas present in the world. It is a story of war background and the festive season like Christmas. There are two characters in this story, Jim Macpherson and British Army, and another one is Hans Wolf Fritz from German Army. And how did they get together to in the battlefield? It happened in World War First. When did World War First happen? It happened on 1914 to 1918. As in your this book has written.
तो हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर हुआ क्या था, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन डिटेल ऑल द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, बट आई शुड टेल यू इन ब्रीफ. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ है वो ऑस्ट्रिया और हंगरी के राजकुमार की हत्या कर दी जाती है, एंड ऑस्ट्रिया एंड हंगरी डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया. सर्बिया begged help from Russia, and Russia got involved to help Serbia. ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या हो जाती है और वो जो है सर्बिया को बोलता है कि आप जो है हमारी स्वतंत्रता स्वीकार करो. तो सर्बिया begged रशिया फॉर हेल्प, देन रशिया इन्वॉल्व्ड टू हेल्प टू डिफेंड सर्बिया. देन जब सीइंग रशिया इन्वॉल्विंग मोबिलाइजेशन ऑफ रशिया, द Germany came in between to attack Russia, but he didn't. And then France came, and Germany thought Russia had a big army, so he didn't try to fight with Russia first. He attacked first on France, and when he attacked on France, he used the Belgium way, and Belgium comes in Britain, and Britain was supposed to help Belgium, so Britain came and he attacked on Germany. तो that's was the लड़ाई इससे आगे भी चली, लेकिन क्योंकि हमारा यही है कि इसमें जो दोनों करैक्टर हैं वो एक जर्मनी के आर्मी पर्सनल है और एक ब्रिटेन के आर्मी पर्सनल हैं. द नेम ब्रिटेन के आर्मी पर्सनल्स को हम टॉमी कहते हैं, TOMMY, टॉमी. इट इज़ नॉट द नेम. ये इस तरह से जैसे हम किसी को प्यार में बोलते हैं, सब ब्रिटेन के आर्मी पर्सन्स को टॉमी कहा जाए. जैसे हम लोग पहाड़ी हैं, हम लोगों को हम कहीं अगर साउथ में जाएंगे हमको बोलते हैं पहाड़ी. तो ऐसा नहीं है कि माय नेम इज मीनाक्षी पंवार, योर में भी सुमित पंवार, योर में भी सुनील भट्ट. बट जब हम बात करते हैं कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी लुक से हम लोग को पहाड़ी बोला जाता है. तो जस्ट लाइक दैट इनको टॉमी कहा जाता था और इनको कहा जाता है फ्रेज. ठीक है, नेक्स्ट. तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आ गया होगा व्हाट इज द स्टोरी. इस स्टोरी में इमोशंस ज़्यादा हैं, आपको समझना है. एक आर्मी पर्सनल्स की वाइफ्स हैं, बच्चे हैं. व्हेन ए आर्मी पर्सनल गोज फॉर बैटल एंड ही लेफ्ट बिहाइंड हिज वाइफ, हिज किड्स, हाउ डू दे फील, हाउ मच दे आर लवेलेबल, अफेक्शनेट टू दैट पर्सन. वो इमोशंस हैं. आर्मी पर्सनल जो है लेटर लिखता है अपनी वाइफ को और फ्रॉम दैट बैटल साइड, और वो लेटर जो लिखता है उसमें वो बताता है कि उसी बैटल जब वो दोनों आमने सामने हैं, उनको एनिमी, वो आपस में एनिमी है, लेकिन वे एनिमी ना होते. क्रिसमस पड़ जाता है, क्रिसमस फॉल्स and they celebrated Christmas without forgetting we are enemies. So here we start. Before we read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. Students, first of all I will read this paragraph, then I will explain it, and wherever I will tell you to underline the words, they would be hard words, then I will later on I will explain you. So a war between the British and the German in 1914. Can you guess which war it was? Yeah, now you can answer. I have told you. It was World War First. जब 1914 में ब्रिटिश और जर्मन जो है आमने सामने आए तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था. ठीक है, हियर सम डेट्स आर गिवन बिलो. 4 जुलाई 1776, 17 December 1903. All the dates in this books has a history. You know, these dates have a significant because significance है इनका, importance है because every date has a history. और जो वैसे तो मोस्टली आप सब जवाब दे पाएंगे, अगर नहीं भी दे पाएंगे तो एक डेट तो आप सबको मालूम होगी, 30 जनवरी 1948, बिकॉज इट इज़ द डेट ऑफ एसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी. आप जानते हैं महात्मा गांधी जो हमारे लीडर हुए हैं, ग्रेट बापू के नाम से हम जानते हैं उनको, जो है उस दिन शहीद दिवस के रूप में हम लोग अपने स्कूल से मनाते हैं. तो मैं उम्मीद करती हूँ ये डेट आपको जरूर मालूम होगी, उनकी पुण्यतिथि होती है. ठीक है, इस तरह से आप इन डेट्स को रिमेंबर करेंगे एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक्स and learn and try to find out what the history behind these dates. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk.
The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll chopped in several pieces. One leg clubs me, mended, scratch marks all down one side. It was for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. Here the narrator. Who is the narrator? Michael Morpurgo. Michael Morpurgo spotted a roll top decks in a junk shop. What is junk shop? जंक शॉप इज ए, आप कह सकते हैं जहाँ पे एंटिक चीज़ें मिलती हैं. जिस प्रकार से देहरादून में कभी कबाड़ी मार्केट होता था, अब तो मालूम नहीं. उस कबाड़ी मार्केट में हम देखते थे जब हम पढ़ते थे, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू माय कॉलेज, तो वो मेरे रास्ते में पड़ता था. तो वहाँ बड़ी एंटिक चीज़ें होती थी, तो जो कभी राजा महाराजाओं के मूवीज़ में देखी होंगी तो बड़ा अच्छा लगता था. तो ऐसे ही जंक शॉप जो होती हैं, उसको आप अगर कहेंगे नॉर्मली भाषा में, जंक शॉप कबाड़ी की दुकान है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, एंटिक चीज़ें मिल जाती हैं. तो इसी तरीके से जो नरेचर है उसके दिमाग में पहले से था, ही वांटेड ए रोल टॉप डेक्स. उसको एक रोल टॉप डेक्स क्या होता है बेटा, जैसे कि आप ये गोल है और इसको उठा लेते थे पूरे को, ठीक है, इस टाइप के अगर आपने देखे हों आपको आइडिया आ जाएगा. तो इस तरीके से ऊपर उठ जाता था, फिर अंदर कुछ उसमें रख देते थे. रोल टॉप डेक्स उसको चाहिए था और ही स्पॉटेड, उसको दिखाई दिया एकदम से एक जंक शॉप में, एंड ही वांटेड टू हैव इट, और उसको ये चाहिए था. तो उसने जो है, लेकिन ये बहुत महंगे होते थे, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगे होते थे. दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, और जो ये एक दिखा उसको, दैट वॉज इन बैड कंडीशन, बुरी कंडीशन में था. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, रोल टॉप जो था ऊपर बहुत टुकड़ों में बटा हुआ था, कटा फटा. वन लग क्लम्सली मैंडेड, और एक जो उसकी टांग थी, 4 टांग का होगा, 2 टांग का होगा, इट हैज़ नॉट बीन मेंशन हियर, तो ये आपने समझना है. तो उसकी एक टांग जो थी वो कहीं ना कहीं जो है अच्छे बेढंगे ढंग से जोड़ी गई थी, जैसे पहले टूटी उसको बेढंगे ढंग से जोड़ दिया गया होता. मैंडेड मीन्स रिपेयर्ड. स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड में स्क्रॉच मार्क्स थे जो कि बर्न मार्क्स कह सकते हो आप. इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, ये एक रिस्क होगा, एक चैलेंज होगा नरेटर के लिए. चैलेंज क्यों होगा? बिकॉज उसको सही करना पड़ेगा. दैट वॉज नॉट इन ए गुड कंडीशन, और उसको वो चाहिए क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है, अदरवाइज वो बहुत महंगे होते थे. तो उसको ये लिए एज ए चैलेंज ही एक्सेप्टेड दिस थिंग, एंड आई हैड टू हैव इट. आई पेड द मैन, उसने उस आदमी को पे कर दिया, एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज, और वो उसको गैराज में लेकर आ गया. आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस ईव के दिन उसने जो है इस पर काम करना शुरू किया. काम करने का मतलब उसने उसको रिपेयर करना शुरू किया. I removed the roll top completely and pulled out drawers. Removed, उसने पूरा अच्छे से जो उसका रोल टॉप था उसको रिमूव कर दिया, अच्छे से पूरा हटा दिया ड्रॉर, और उसके पुल आउट माने खींचना, उसने ड्रॉर को खींचा, उसके अंदर ड्रॉर था. द वैनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो वैनियर को आप समझ सकते हो कि फर्नीचर को सुंदर बनाने के लिए ऊपर एक पतला सा कुछ चिपकाया जाए, जिसको आप सनमाइका भी बोलते हो आजकल. तो वो पूरी तरीके से जो है ऑल हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो कहीं फूल जाती है घरों में सनमाइका, आपने देखा होगा, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस चीज़ को. तो वो लगभग पूरी तरीके से अच्छे से मतलब लिफ्टेड थी फ्रॉम एवरीवेयर, हर तरीके से उठी हुई थी. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लगता है जैसे वाटर पानी से गीली होकर जो फूल जाती है, उठ जाती है. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन देयर डेक्स. बोथ फायर एंड वाटर, आग और पानी जो है ऐसा लग रहा था कि उसने पूरी तरीके से को डैमेज कर दिया हो. टेकन देयर टोल, अंडरलाइन दिस फ्रेज, टेकन देयर toll. It is a phrase, it means fully damaged. Fully damaged, maybe by fire, maybe by water. The last drawer was stuck fast. जो लास्ट ड्रॉर इसका था वो जो था उसमें फंस गया, बिल्कुल बुरी तरह से फंस गया. जैसे आप लोग बोलते हो आई एम स्टक इन ट्रैफिक जैम, तो पूरी तरह से फंस जाना, उसी तरीके से फंसा हुआ था टाइटली. आई ट्राइड ऑल आई कुड
टू ईज इट आउट, उसने बहुत कोशिश, ही ट्राइड आउट, उसने कोशिश की कि इसको आराम से निकाल पाऊँ बाहर. इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स. इन द एंड, लेकिन जब नहीं निकला, इन द एंड ही यूज ब्रूट फोर्स, मतलब पूरी ताकत लगाई उसने. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट. स्ट्रक इट साइडली शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट. फिस्ट मुक्के से, मुट्ठी से, जैसे आप कोई चीज़ फंस जाती है ना घर में, आप ऐसे ऐसे करते हो कि ये निकल जाए. कभी कभी चीज़ें काम कर जाती हैं, तो ट्रिक काम कर गई. उसने ऐसे किया तो वो द ड्रॉर फ्ली ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस. शैलो, नॉट सो डीप, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं हो, मतलब कोई चीज़ होती है ना जैसे वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, तो उसको लिए बोलते हैं स्पेस अंडर ए सीक्रेट ड्रॉर. तो उस ड्रॉर के अंदर उस दूसरा सीक्रेट ड्रॉर था. ठीक, देयर वॉज समथिंग इन देयर, कुछ वहाँ था. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. मैं उसमें गया और मैंने स्मॉल टिन बॉक्स, मेरे हाथ लगा और मैंने उसको निकाल लिया. उस स्मॉल टिन बॉक्स के ऊपर सैलो टेप, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ थोड़ा. सैलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन ए शेकी हैंड राइटिंग. जैसे ये आपका ब्लैक कलर का टिन बॉक्स है, आपने इसके ऊपर, आपने अपनी मेमोरी के लिए रिमेंबर, जिससे सो दैट इट कैन रिमेंबर टू यू, तो आप इसके ऊपर जो है शेकी हैंड, हिलते हुए हाथ से उसने कुछ लिख के चिपकाया था इसके ऊपर, जिससे कि याद रहे कि व्हाट आई हैव केप्ट इनसाइड दिस टिन बॉक्स. तो इस तरह का टिन बॉक्स के ऊपर उसमें सैलो टेप से चिपका हुआ था, लाइन नोट पेपर था, उसमें शेकी हैंड से लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, रिसीव जनवरी 25, 1915. तो जिम का लास्ट लेटर जो प्राप्त हुआ 25 जनवरी 1915. साथ में लिखा था टू बी बरीड विद मी व्हेन टाइम्स कम. टू बी बरीड विद मी, मेरे साथ दफनाया जाए जब समय आए, जब समय आएगा, यानी कि व्हेन शी और ही वुड बी डाइड. तो दिस लेटर मस्ट बी कैप्ट in my with me. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. I knew, मैं जानता था कि ये गलत बात है, to open the box, इस बॉक्स को ओपन करना. But curiosity got the better of my scruples. लेकिन क्यूरोसिटी, जिज्ञासा जो है वो हमेशा हावी हो जाती है. वही जिज्ञासा यहाँ हावी हो गई कि इस लेटर बॉक्स में, इसमें बॉक्स में होगा क्या. It usually does, ऐसा अक्सर होता है. Inside the box there was an envelope. बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवलप था. I can show you whatever. इस एनवलप, this is an envelope. ये एनवलप नहीं था, लेकिन ऐसा एक एनवलप उसके अंदर था. ठीक है. The address read, इस तरह से एड्रेस लिखा हुआ था. ठीक है. मिसेज जिम मार्कपर्सन, 12 कोपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉसेट. I took out the letter, not me, you can take me as author, narrator. I took out the letter, उसने letter निकाला and और उसने ऐसे इसको, it was written in pencil, देखिए, it was written in pencil, पेंसिल से लिखा गया था. Then and dated at the top December 26, 1914, और ऊपर टॉप में डेट लिखी गई थी December 26, 1914. And after that the first paragraph is first portion is completed, and now the second portion. In second portion we will read the letter. How did Jim Markperson has written a letter to his wife, and in second portion it is a letter. So students, today as I have told you, so now I am going to teach you some words and how can you learn these words, because many times many students have told me, have requested me, ma'am, हमें बड़ी परेशानी होती है बड़े बड़े वर्ड्स को लर्न करने में. और बच्चों, जितनी आपकी वोकैबुलरी अच्छी होएगी उतनी ही आपकी इंग्लिश अच्छी होएगी. तो आप वोकैबुलरी आपकी कैसे अच्छी होएगी, जब आप वर्ड्स याद करेंगे, उनके मीनिंग समझेंगे, साथ साथ उनको सेंटेंसेस में प्रयोग करेंगे. ठीक है. तो जैसे कुछ बड़े बड़े वर्ड्स लेते हैं यहाँ पे. लर्निंग को जब तक आप अच्छे से मन से नहीं करेंगे, फन टाइप नहीं समझेंगे, तो तब तक ये इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू. लेकिन मुझे उम्मीद है, बिकॉज यू आर सीनियर स्टूडेंट्स, यू आर 8th क्लास स्टूडेंट्स, यू कैन लर्न इन ए वेल मैनर. तो जैसे मैंने सबसे पहले हमने ये क्रिसमस वर्ड लिया है,
और बच्चों को इसकी स्पेलिंग याद नहीं होती है, कंफ्यूज होते हैं आप, और स्पेलिंग्स तो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। जैसे क्रिसमस हमने लिया है, अब आप इससे कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं। इस जितना बड़ा लेटर, जितना बड़ा वर्ड होगा उतने ही आप वर्ड के उसमें से वर्ड्स निकाल सकते हैं। तो ये गेम हो जाता है और आपको स्पेलिंग्स भी याद हो जाती हैं। जैसे कि आप इसमें से क्राइस्ट सबसे पहले, ठीक है, और फिर आप देखिए छोटे छोटे वर्ड बनाइए पहले, इट, ठीक है, एज, ठीक, चेयर, ठीक, और स्टार, so many words you can make. You are I hope you all are good students, और आप बना सकते हो, ये गेम होता है। और जितने जिसके वर्ड्स बनेंगे उतने उसको मार्क्स ऐड करते जाओगे और आप जीत जाते हो गेम। इसी तरीके से बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं, आप बहुत सारे वर्ड्स का बना सकते हो। जैसे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं आप लोगों के लिए, देखिए जैसे मैंने क्रिसमस लिखा है, ये आपका, आप इसको एज ए होमवर्क भी ले सकते हो और रिडल्स भी कर सकते हो, अपने बड़ों से पूछ सकते हो। इस लॉकडाउन में आपके लिए एक फन गेम हो जाएगा ये, और साथ साथ लर्निंग भी होगी, ठीक है। क्रिसमस हो गया, हिस्ट्री हो गया, सेकंड वर्ड, हिस्ट्री में बहुत सारे वर्ड बनते हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव, ये सारे वर्ड्स इसी चैप्टर से हैं, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट वन इज क्यूरोसिटी, अभी आपने पढ़ा ना कि क्यूरोसिटी, जिज्ञासा जो है वो कहीं ना कहीं जो है प्रभाव जमाती है अपना, उस जिज्ञासा के अंतर्गत ही उसने वो लेटर एनवेलप से निकाल के पढ़ा, ठीक है। तो जैसे कि आप हिस्ट्री से बनाओ, छोटे छोटे बनाने हैं, कोई बात नहीं, हिज, इट, स्टोरी, ट्रू, और भी बन सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज एक्सपेंसिव, पैन, vain, is, in, pin, ठीक। नेक्स्ट इज क्यूरोसिटी, सिटी, क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। नेक्स्ट योर्स, यू, रस्टी, जंग लग जाता है ना, रस्टी, ठीक है। अच्छा, कोट, कितने वर्ड्स बन सकते हैं इससे, ठीक। रोटी, ठीक। क्राई, क्राई आउट, इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। आप बड़े बड़े वर्ड्स को इस तरह से डिवाइड करके छोटे छोटे वर्ड्स बना के, कुछ सीधे सीधे बन, जैसे क्राइस्ट सीधा सीधा दिख रहा है इसमें, कुछ आप आगे पीछे लेटर्स को करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी, अब क्वेश्चन आंसर है कंप्रीहेंशन, जस्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट इन दिस चैप्टर। तो समरी तो आपकी जैसे समझ में आ गई है। तो आप जो है क्वेश्चन से, what did the writer found in the junk shop, तो आप जवाब देंगे, मैम the author found a roll top desk in a junk shop। इस तरीके से what did he find in a secret drawer, he found an envelope, he found an envelope in that secret drawer, and in that secret envelope the one letter was inside that envelope। तो इस तरीके से आप comprehension questions करेंगे, word meaning learn करेंगे, और साथ साथ पूरे जो ये गेम भी साथ साथ आप करेंगे। और ग्रामर पोर्शन हम आपको नेक्स्ट सेशन में इसके ग्रामर पोर्शन कराएंगे। दूसरी बात बच्चों, आप जितना खुद से करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, मतलब वन शुड बी सेल्फ रिलायंट, आप जितना आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे उतना आप सीखेंगे। बिकॉज लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं आप तभी सीखते हैं उसको रात दिन जब आप प्रैक्टिस में रहते हैं, जैसे हिंदी है वैसे ही है, ठीक है। और आपको अगर ये मेरा सेशन आपको दिखाई ना दे या मिले ना कहाँ देखना है, तो आप YouTube चैनल जो आता है उस YouTube चैनल पे, दूरदर्शन का जो चैनल है, आप उस पर भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से कोनी को लेटर लिखा एंड लेटर राइटिंग प्रोसीजर। उस तब तक आप अपने
अपने डियर्स, कोई भी आपका प्यारा हो, उसको आप लेटर लिख सकते हैं। आप तब तक एक लेटर लिख के रखिएगा अपने मम्मी को, पापा को, ये सोचते हुए कि यू आर फार बिहाइंड, यू आर फार फ्रॉम योर होम एंड यू हैव टू टेल हिज और हर एवरीथिंग अबाउट वेयर यू आर लिविंग। तो इस तरीके से आप एक लव लेटर कहो उसको, या एक कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हैं, और आप वो एक लेटर लिख के रखेंगे, वर्ड मीनिंग याद करके रखेंगे, साथ साथ फन गेम के कुछ वर्ड्स आप मुझे बताएंगे। और जब व्हेन दिस लॉकडाउन विल लिफ्टेड अप एंड वी विल ऑल टुगेदर इन अवर स्कूल्स बैक अगेन, तो आपने टीचर को ये सब दिखाएंगे। हाँ, आई होप शी और ही वुड बी वेरी हैप्पी। थैंक यू।